अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. आज हम क्लास 9 की फर्स्ट पोएम टेकअप करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू टीच ऑल 5 पोएम्स, ऑल्टरनेटिवली पढ़ाने वाला हूँ. फर्स्टली क्लास 9, क्लास 10, क्लास 9, क्लास 10. तो ऐसे हम फॉलो करने वाले हैं ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब की तरफ से. और आज हम बिगिन करने वाले हैं द नाइट मेल के साथ, है ना. देर आर 2 पोएम्स इन योर सिलेबस विच आर क्वाइट लिटरली referring to a train, one being the night mail. And this is a very interesting poem in sorts because it has a lot of elements of mystery and darkness. However, this poem is written in such a way that it is a very positive type of a poem, right? There is a sense of mystery, but the entirety of the message from the poem is positive. And it is a poem that describes the level of effort and the level of technological development which was seen at that time. We now take it for granted कि यार ये ट्रेन है, हमको ट्रेन नहीं प्लेन से जाना है भाई. पर उस टाइम पे there was no such means of traveling. So the steam engine, when it was developed and started running and the railways were built, so it was a monumental change in the history of humankind. And this poem signifies the level of awe and utter disbelief that people had. Also, this poem has a few themes itself. What are those themes? The theme of time is present here. Importance of time, the theme of time, which is basically you need to be punctual, and how this train, even after all of its hurdles, is very punctual. So it also describes that in a way that people should be punctual. Yes, everybody has problems, everybody has hurdles, but yeah, the train is personified to be somebody who has a lot of struggles and is always on time. There is a theme of social connectivity. Social connectivity or communication. Social connectivity. Now, what does social connectivity means? Now, when this train system was started and it actively got more and more and more in use, these mail trains used to carry all the letters and all of that very fastly. Those letters used to travel at a very rapid pace. So now the connectivity between the society was very much better. If you wanted to send a letter, you could, and the next day that letter could be delivered. Not like thousands of kilometers, but yes, a few hundred kilometers. If you have somebody you want to give a letter to, it used to reach them at that same point of time, 1 or 2 days later. And communication is also a theme in this poem, right? So all of these are the themes of this poem, right? There is a certain sense of mystery also involved, but the major crux of the themes are time, social connectivity and communication. Now firstly, before we delve into the piece by piece dissection of each and every line of this poem, मैं थोड़ा बहुत जो राइटर हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा. W.H. ऑर्डन, जिनका फुल नेम है विंस्टन ह्यू ऑर्डन, वो यॉर्क में पैदा हुए थे 21st February, the same month as me. So he was born on 21st February 1907. His father was a doctor and academic, है ना. So his father was a professor plus a doctor. Auden was educated at Oxford University. So he did his education from Oxford University. In 1928, he went to live in Berlin for a year, returning to England to become a teacher. After he had finished his education, वो बर्लिन रहने गए कुछ साल के लिए, और उसके बाद वो इंग्लैंड लौट के आए to become a teacher. His scholarly poetry made his reputed as a witty and technically accomplished writer, है ना. जो उनकी स्नैपी और थोड़ी सटायरिकल पोएम्स थी, उससे क्या हुआ, उनकी जो रेपुटेशन बनी एक विटी और टेक्निकली अकॉम्प्लिश पोएट. मतलब वो जो भी पोएम लिखते थे, इट यूज टू हैव अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज एंड इट यूज टू हैव अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज. अब एक पोएम आप लिखते हो तो देर आर राइम स्कीम्स, देर आर सिलेबल्स, इनर राइमिंग स्कीम्स, आउटर राइमिंग स्कीम्स, है ना. सो ही वॉज अ वेरी
टेक्निकल राइटर इन अ वे कि वो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझते थे और उसका बहुत बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन कर लेते थे. ही कोलैबोरेटेड विथ क्रिस्टोफर आइशरवुड, है ना. ही इज ऑल्सो अ वेरी अकॉम्प्लिश्ड राइटर who he had met at school on a number of plays, जहाँ पे number of plays लिखे हैं इन लोगों ने साथ में मिलके. In 1935, Auden was married to Erika Mann. She is also, I believe, a writer, the daughter of German novelist Thomas Mann, right? It was a marriage of convenience to enable her to gain British citizenship and escape Nazi Germany. Auden himself was homosexual. सो द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ऑर्डन हिमसेल्फ वॉज होमोसेक्सुअल, ही वॉज नॉट अ स्ट्रेट मैन, बट उन्होंने एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस करी थी एरिका मैन के साथ, क्योंकि जब नाजी जर्मनी बन रहा था शी वांटेड टू एस्केप दैट, तो इसलिए उन्होंने उनसे शादी करी थी. In 1972, with his health declining, Auden left America. He moved to live in Oxford in a cottage belonging to his old college Christchurch. In the late 1950s, Auden had bought a house in Austria where he spent 6 months of every year. He died in Austria on 29 September 1973. Right, so this is the entire life history of the poet. Now, few things that we need to know before we begin this poem. This poem was written for a movie, right? So this was a movie. This was written in a way it had to be finished in a certain amount of time span, and each and every line had to be covered in a certain amount of time span. So this was written in order of that. Secondly, this is written in a way that it signifies the साउंड ऑफ द ट्रेन, द रिदम ऑफ द ट्रेन. अगर आप कभी ट्रेन में बैठे हो तो वो चिक 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 चलती है, तो उसको सिग्निफाई किया है. और अगर आप उसको मैच करने बैठोगे तो इट विल स्टार्ट टू साउंड सिमिलर. मतलब व्हेन यू विल फिनिश दिस लाइन दिस लाइन दिस लाइन, सो यू विल स्टार्ट टू सी दैट उसमें एक रिदमिक टोन है जो उससे मैच कर रही है, राइट. सो दिस वॉज रिटन फॉर अ मूवी एंड लेटर डाउन द लाइन इट बिकेम अ पोएम इटसेल्फ, है ना. सो दैट इज all of the basic background work that we needed to do. Now let's start with the line by line explanation. This is the night mail crossing the border, है ना. So this is the night mail which is crossing the border. Why is the night mail crossing the border? It is going from London to Glasgow. अब why is it going to London to Glasgow? It is carrying letters from London and it is going to Glasgow, which is in Scotland, to deliver those same letters, right. So there is a sense of, there is an element of a long and a distant journey, right. Bringing the check and postal order, it is bringing the check referring to the check, हम लोग तो जानते ही हैं, जो कि लिखा जाता है to pay somebody, and the postal order, और पोस्टल ऑर्डर लेके आ रही है. लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स जो हैं इसमें रिच के लिए भी हैं, लेटर्स फॉर द पुअर, देयर आर लेटर्स फॉर द पुअर एज वेल. द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, है ना. किनारे की दुकान के लिए भी लेटर है तो, और किसी लड़की के लिए भी लेटर है ना. पुलिंग अप बीटॉक अ स्टेडी क्लाइम, द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम. सो देयर इज द हाईलाइट ऑफ टाइम, देर इज द हाईलाइट ऑफ द थीम ऑफ टाइम. अब बीटॉक एक ऐसी जगह है विच इज एट अ वेरी स्टीप पॉइंट, है ना, इन स्कॉटलैंड, बट द ट्रेन इज स्टेडली क्लाइंबिंग इट, धीरे 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 चढ़ रही है, और वो हाईएस्ट पॉइंट है जहां पे कोई रेलवे सिस्टम है ना. नाउ द ग्रेडियंट्स इज अगेंस्ट हर, मतलब द ग्रेविटी इज गोइंग टू गो दिस वे बट एंड द ट्रेन इज गोइंग दिस वे, है ना. सो द gravity is against the train but it is making a steady climb, है ना. but she is on time, but still even after such hurdles the train is on time, the train is trying to reach on time. birds turn their heads as she approaches, जो birds हैं वो अपनी मुंडिया मोड़ मोड़ के देख रहे हैं. they are very shocked कि what is this creature, what is this that is moving towards them and at a very rapid pace, because
ये चीज हाईलाइट कर रही है कि इंग्लैंड में ये चीज बहुत नई थी. दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी न्यू, दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी रिमार्केबल, है ना. तो द बर्ड्स आर सिग्निफाइंग द लेवल ऑफ ऑ दैट एवरीबडी हैज फॉर द ट्रेन सिस्टम नाउ, है ना. द मेल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ ट्रेन सिस्टम जो लेटर्स और क्या कहते हैं ये सब चीजें कैरी करता है, बट मेल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ मैसेज और अ मेल दैट यू सेंड. सो इसका मतलब भी बेसिकली नाम में इसीलिए है बिकॉज इट कैन रिफर टू टू थिंग्स एट अ टाइम, एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. स्टेयर फ्रॉम द बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, है ना. अपने बुशेस में से ब्लैंक फेस कोचेस मतलब एस्टोनिश्ड फेसेस लेके ये लोग क्या कर रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं. कौन स्टेयर कर रहा है, बर्ड स्टेयर कर रही हैं. वाई आर दे स्टेयरिंग, बिकॉज दे आर इन वेरी मच ऑ कि ये क्या चीज है और ये क्यों इतनी पेस पे इतनी रात के वक्त क्या कहते हैं ट्रैवल कर रही है. शीप डॉग्स कैनॉट टर्न हर कोर्स, दे स्लम्बर ऑन विथ पॉज अक्रॉस. अब शीप डॉग्स क्या होते हैं, आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने शॉन द शीप देखा होगा. शॉन द शीप में एक डॉग था. नाउ दैट वाज अ शीप डॉग. अब उसका काम क्या था कि भेड़ बकरियां जब फैलने लगे, एक स्ट्रेट पाथ से हटके इधर उधर जाने लगे, तो द शीप डॉग इज ट्रेन्ड इन अ वे कि उन भेड़ बकरियों को वापस लेके अपने पैक में लाए और उनको क्या कहते हैं, उनके स्टेबल तो नहीं कहते हैं, शीप्स का पेन होता है, यस, उनके पेन तक उनको ले जा सके, है ना. तो ही इज ट्रेन्ड दैट नो शीप गोज आउट ऑफ द पैक और सॉरी द हर्ड, और वो क्या कहते हैं सिंपली अपने जो क्या कहते हैं पेन है वहां तक जाएं और जहां उनको ग्रेस करने ले जा रहा है वहां पे भी एक ऑर्डर मेंटेन करके जाएं. नाउ दिस शीप डॉग cannot turn her course because this is a very powerful train, this is a very strong train, he can only but bark at it and he cannot turn the course, he cannot change the course of it जैसे कि वो sheeps के hurt का कर सकता है ना. तो that is what they are trying to say. They slumber on with paws across. अपने हाथ पे हाथ रख के ये लोग सो जाते हैं, है ना. Now one more thing that I would like to tell you is the train is referred to as a she here, है ना. मोस्टली आप देखोगे when a powerful, mysterious और a डार्क कैरेक्टर और somebody which is very resilient दिखाया जाता है पोएम्स में, मूवीज में, या फिर क्या कहते हैं कोई पोएट कह रहा हूँ प्रोज में, या फिर कोई भी प्ले में, तो वो मेल फिगर होता है. बट यहाँ पे इट इज फीमेल फिगर जिसकी बात हो रही है ना. passes and no one wakes. In the farm she passes and no one wakes. फार्म से मतलब द फील्ड्स ऑफ लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, बिकॉज इट इज गोइंग थ्रू द कंट्री. तो कंट्री साइड पे देर आर अ लॉट ऑफ फार्म्स, तो वहां से भी जब वो निकल रही है इट इज नॉट डिस्टर्बिंग एनीबडी, दे आर ऑल स्लीपिंग. बट अ जग इन द बेडरूम जेंटली शेक्स. बट लेकिन वो इतनी तेजी में है और इतनी भारी है, तो उससे क्या हो रहा है, जो कमरे में बेडरूम में एक पानी का जग रखते हैं वो हिल रहा है, उसके शेयर फोर्स से वो जग हिल रहा है ना. मूविंग फोर्थ, डॉन फ्रेशंस. डॉन, अब सुबह हो गई है, ऑलमोस्ट डॉन आ गया है, सूरज मामा जाग चुके हैं. द क्लाइंब इज डन. जो क्या कहते हैं वो स्टीप क्लाइंब थी वो चढ़ ली है ट्रेन ने, और डाउन टूवर्ड्स ग्लासगो. अब वो ग्लासगो की तरफ उतर रही है. शी इज डिसेंडिंग टूवर्ड्स ग्लासगो, टूवर्ड्स द स्टीम टग्स येल्पिंग डाउन द ग्लेड ऑफ क्रेन्स, है ना. टूवर्ड्स द स्टीम टग्स, जो स्टीम के क्या कहते हैं छल्ले हैं वो नीचे गिरते जा रहे हैं, और जो क्रेन है उनके ग्लेड भी क्या कहते हैं गिरते जा रहे हैं. टूवर्ड्स द फील्ड ऑफ अपैरेटस द फर्नेसेस, है ना. टूवर्ड्स द फील्ड्स ऑफ अपैरेटस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है. सो दिस इज अ फील्ड जहाँ पे क्या कहते हैं, नाउ इट इज गोइंग इनटू अ बिजी एरिया, जहाँ पे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा काम चलता है. नाउ इट इज गोइंग टूवर्ड्स द एरिया जहाँ पे क्या कहते हैं इट इज़ वेरी डेंसली पैक्ड, एंड दैट डेंस पैक्ड एरिया इज अ एरिया जहाँ पे काम होता है, नॉट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बाय एनी मीन्स. सो दिस इज वाई इट इज रिटन अपैरेटस हियर. द फर्नेसेस, यहाँ पे मे बी फर्नेसेस हैं, मे बी आयरन मेल्ट होता है यहाँ पे कुछ स्टील वगैरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे फर्नेसेस हैं.
set on the dark plane like gigantic chessmen। तो वो क्या कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी फील्ड पे विच इज़ वेरी डार्क, ये लोग ऐसे की जैसे कि चेसमैन होते हैं, ये मेरा हॉर्स है वैसे चेस वाला, डोंट माइंड इट, जैसे कि चेसमैन होते हैं उनकी तरह खड़े हैं, मतलब दे लुक लाइक दे आर चेसमैन हु आर स्टैंडिंग, वेरी जाइगैंटिक चेसमैन विच आर स्टैंडिंग ऑन अ फील्ड, ऑन अ लार्ज फील्ड। ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर, ऑल ऑफ द स्कॉटलैंड इज वेटिंग फॉर हर, है ना। नाउ इसका एक और मीनिंग है, जो ये जो फैक्ट्रीज हैं इनकी चिमनी से धुआं निकलता है। कितनी गंदी ड्राइंग है मेरी, कहाँ गया भाई, हाँ, तो क्या कह रहा है, ये जैसे कि एक चिमनी है और ये नीचे फैक्ट्री है, तो इसमें से जो धुआं निकल रहा है वो चिल्ला रहा है कि आओ ट्रेन जल्दी नीचे आओ, है ना, बहुत जल्दी नीचे आ जाओ ताकि तुम लेटर्स डिलीवर कर सको, है ना। अब लेटर इसमें क्या कंटेन कर रहे हैं, लेटर्स कैसे हैं, लेटर्स ऑफ थैंक्स हैं, लेटर फ्रॉम बैंक्स हैं, बैंक्स मतलब अपने वाले बैंक्स, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेटर्स ऑफ जॉय है, अच्छी खुशियों वाले लेटर्स हैं। फ्रॉम द गर्ल एंड द बॉय, ये थोड़ा रोमांटिक सेंस में बात हो रही है। बेसिकली ही सेइंग दैट लेटर्स ऑफ जॉय आर देयर फ्रॉम द गर्ल एंड द बॉय, जो मतलब दो लोग बहुत दूरी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भाई, वो भी एक दूसरे को खत भेज रहे हैं, ऑफ लेटर्स ऑफ जॉय। रिसिप्ट, रेसिटेड, बिल्स एंड इनवाइट, रेसिप्ट है इसमें और बिल, रेसिप्ट बिल है मतलब कि मेरे को ये सामान तुम्हारा मिल गया है ना, और इनविटेशंस भी हैं कि यार आज नहीं तो कुछ दिन बाद मेरे घर खाने आ जाना, या मेरी बेटी की शादी है उसमें आ जाना। सो देयर आर लेटर्स ऑफ दो सॉर्ट्स एज वेल। टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक, जो नया सामान मैंने भेजा है उसको इंस्पेक्ट कर लिया है कि नहीं कर लिया है तुमने, उसके भी लेटर्स हैं। और विजिट रिलेशंस की मैं आने वाला हूँ आपसे मिलने पापा जी, वैसे लेटर्स भी हैं। एंड एप्लीकेशंस फॉर सिचुएशंस भी हैं, है ना, एप्लीकेशंस भी हैं, यार मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रिंसिपल साहब मैं 5 दिन और छुट्टी पे रहूँगा, तो वैसे लेटर्स भी हैं। एंड टिमिड लवर्स, डिक्लेरेशंस एंड गॉसिप, अब जो छुपे छुपे लवर्स हैं उनकी क्या कहते हैं, गॉसिप्स भी हैं, डिक्लेरेशंस मतलब कन्फेशंस भी हैं, है ना, सो दे आर कन्फेसिंग देयर लव एज वेल। उसके साथ गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशन, पूरे शहर की गॉसिप भी भरी हुई है लेटर्स में। न्यूज़, सर्कमस्टांशियल, अब यहाँ पे सर्कमस्टांशियल मतलब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है ना, देयर इज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इन दीज लेटर्स एज वेल, है ना। न्यूज़ फाइनेंशियल, अब फाइनेंशियल न्यूज़ भी है कि मेरा इतना नुकसान हो गया या फिर हमको इतना इन्वेस्ट करना है इस चीज़ में। लेटर्स विथ हॉलीडे स्नैप्स टू इनलार्ज इन, है ना, तो अब आप किसी अपने लव्ड वन को, मैं हॉलीडे पे गया था मैंने ये किया, तो वैसे लेटर्स भी हैं टू इनलार्ज इन, टू मेक द पर्सन मोर हैप्पी अबाउट इट। लेटर्स विथ फेसेस स्क्रॉल्ड इन द मार्जिन, है ना, तो यहाँ पे स्क्रॉल्ड फेसेस के साथ भी लेटर्स हैं। अंकल्स के लेटर्स हैं, कजिन्स के लेटर्स हैं, आंट्स के भी लेटर्स हैं। सो ऑल ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ लेटर्स आर इन दिस मेल। लेटर्स टू स्कॉटलैंड, इसमें लेटर्स साउथ ऑफ फ्रांस पे भी से आए हैं स्कॉटलैंड में। लेटर्स ऑफ कंडोलेंस टू हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स, है ना, तो लेटर्स ऑफ कंडोलेंसेस भी हैं, क्या पता किसी के घर में हत्या कह रहा हूँ यार, मृत्यु हो गई है, तो उसके भी लेटर्स हैं। नोट्स फ्रॉम ओवरसीज टू हेब्राइड्स रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू, है ना, ओवरसीज से हेब्राइड्स में लिखे लेटर्स भी हैं, है ना, हेब्राइड्स को लिखे हुए भी लेटर्स हैं। ऑफ एवरी ह्यू मतलब एवरी कलर के लेटर्स भी हैं, मतलब हर तरीके की इंक से लिखे हुए पेपर्स हैं, लेटर्स हैं। द पिंक, द वॉयलेट, द वाइट एंड द ब्लू, वाइट से भी लिखा है किसी ने, वॉयलेट से लिखा है, द पिंक से लिखा है, ब्लू से लिखा है। द चैटी, द कैटी, चैटी लेटर्स भी हैं, कैटी लेटर्स भी हैं, बोरिंग लेटर्स भी हैं, अडोरिंग लेटर्स भी हैं, ठंडे लेटर्स भी हैं, ऑफिशियल लेटर्स भी हैं। हार्ट्स आर पोरिंग मतलब कन्फेशन, फिर से दिल की बातें भी हो रही हैं उसमें। सो ऑल ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ लेटर्स आर देयर इन द मेल सिस्टम। देयर इज ऑल ऑफ दीज लेटर्स जो
क्या कहते हैं, वो ट्रेन कैरी कर रही है। इसमें क्लेवर लेटर्स भी हैं, स्टूपिड लेटर्स भी हैं, शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं। सो ऑल ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ लेटर्स आर देयर। टाइप्ड लेटर्स भी हैं, प्रिंटेड लेटर्स भी हैं, और स्पेल्ट ऑल रॉन्ग लेटर्स भी हैं, जो मतलब हाथ से लिखे गए हैं, जिसमें किसी को इंग्लिश नहीं आती होगी भाई, उसने सब कुछ गलत लिख दिया है ना, जैसे कि आप अपने लैंग्वेज के पेपर में कराते हैं। उसके साथ थाउजेंड्स आर स्टिल asleep, अभी तक हजारों लोग सो रहे हैं, पर ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स, दे आर ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स, हैविंग नाइटमेयर्स, और ऑफ फ्रेंडली टी बिसाइड द बैंड एट क्रैंस्टन और क्रैफर्ड्स, है ना। या फिर वो ये सपना देख रहे हैं कि बहुत आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं क्रैंस्टन या क्रैफर्ड में, है ना। asleep in working Glasgow, asleep in well set Edinburgh, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, asleep हैं ग्लासगो में और वेल सेट एडिनब्रा में भी सो रहे हैं। वर्किंग ग्लासगो क्यों कहा गया है, क्योंकि इट वाज सॉर्ट ऑफ अ प्लेस जहां पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती थी। और वेल सेट क्यों कहा गया है, क्योंकि एडिनब्रा एक तरीके से पॉर्श एरिया है, जैसे हम कोलकाता ले सकते हैं इंडिया में, या फिर केरला ले सकते हैं, केरला वुड बी अ बेटर एग्जांपल, है ना। asleep in ग्रेनाइट एबरडीन, है ना, ग्रेनाइट एबरडीन में सो रहे हैं। दे कंटिन्यू देयर ड्रीम, वहाँ पे उनके सपने कंटिन्यू भी हो रहे हैं। एंड शैल वेक सून एंड लॉन्ग फॉर लेटर्स, और जल्दी ही ये लोग उठेंगे और इन लेटर्स के लिए लॉन्ग करने लगेंगे। दे वुड वांट दीज लेटर टू बी डिलीवर्ड एज सून एज दे वेक अप, एंड नन विल हियर द पोस्टमैन्स नॉक, और फिर भी सोते सोते ये लोग पोस्टमैन की नॉक नहीं सुनेंगे। विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट, बिना किसी क्या कहते हैं, मतलब अगर कोई घर पे खटखट आता है तो एकदम से क्या कहते हैं, कौन आ गया यार, वो चीज़ भी नहीं होगी। इतनी डीप स्लीप में ये लोग सो रहे हैं। फॉर हु कैन बेयर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, है ना। और यहाँ पे कौन ऐसा होगा जो ये बेयर कर सकता है कि वो भुला दिया गया है। मतलब अगर आपको लेटर नहीं आया तो आपको बुरा लगेगा, यार सबके घर लेटर आया, मेरे घर लेटर नहीं आया। तो वही चीज़ है, जब आपके व्हाट्सएप पे आप सुबह सो के उठो, मैं थोड़ा 2025 टर्म्स में बात करूं तो, अगर आप सो के उठो और पूरा व्हाट्सएप की वॉल खाली हो, एकदम मूड खराब हो जाएगा सुबह सुबह, यार कोई मैसेज नहीं किया मुझे आज। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। सो with that we have come to the end of the poem. If you have any questions, doubts or queries, definitely let me know. I hope I did justice to the poem, and if you have any sorts of doubts ki why was this written in what way or what specific manner, or you want questions for it, definitely leave it in the comments. I shall see you with the next poem. Till then, bye bye.